Hello students, let us start our today's class. So today the main focus would be on the actinoids. Okay, so we have already studied about the lanthanoids. Now the next panel in which the 5f orbital are filled are the actinoids. Let us start our today's class. The first thing to notice here is that it includes 14 elements, right? It includes 14 elements from thorium to lawrencium. Okay, from thorium to lawrencium, right? So basically, first of all, you should be aware about its name, symbols, and some properties, right? So these three things are important. So talking about properties, we will study about the electronic configuration, their chemical reactions, and their physical properties. Things are that to be covered, right? So as we in the previous class, we have studied about, not in the previous class, in the class before the previous class, we studied about the lanthanoids, in which we discovered about the lanthanoid symbols, electronic configuration, some anomalies in the electronic configuration, both in their normal state and the oxidized state. Plus, we studied about their radius, right? Consecutively, we studied their properties. We would say the chemical reactions, that how they are +3 oxidation state stable, and most of the reactions gives their +3 oxidation state. Similar to that, we will study about the actinoids. Okay, so I mentioned it earlier that lanthanoids and actinoids are radioactive, and actinoids are more radioactive, right? So they are more reactive as compared to lanthanoids. So the earlier member have a longer half-life. So what is the meaning of longer half-life? What is the meaning of this? So if you just think and go back to the chemical kinetics, okay, so if you just go back to the chemical kinetics, you must have studied there that all the radioactive reactions are what? First order reaction, right? And we can calculate their half-life. So if something is having a greater half-life or a longer half-life, means it can exist for a longer time, or they are stable. Okay, they are stable as compared to the one which have a shorter half-life. So the initial one are less radioactive, and the further one, as we increase the atomic number, we will see that the half-life of the actinoids is decreasing. What does this suggest? ये हमें क्या बताता है कि ये सारे जो है वो as with the passage of time का क्या होता है, हाफ लाइफ घटते जाता है या फिर इनकी रेडियो एक्टिविटी बढ़ते जाती है. The latter ones have half life values ranging from 3 to 3 minutes. Okay, from a day to 3 minutes. मतलब इनका हाफ लाइफ बहुत ही कम होता है. ठीक है, एक दिन या 3 दिन में इनका जो इनिशियल अमाउंट था उसका आधा हो जाता है. एक दिन में ही इतना फास्टली डिकम्पोज करते हैं. ठीक है, like for lawrencium, which is 3 minutes. So for 3 minutes, right, you can just imagine that within 3 minutes, if you're suppose taken 10 grams, then it will get reduced to 5 grams, right? So this is very radioactive nature. Okay, so and this is the reason कि इनको आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्योंकि इनका मास क्या है, विथ टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना. विथ टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. The latter member could be prepared only in nanogram quantity. Why? Because they are very radioactive in nature. Right? Very important that actinoids are radioactive in nature, and as we move from smaller atomic number to greater atomic number, the radioactivity of the lanthanoid increases or their half-life decreases. Right? The lawrencium has a half-life of 3 minutes. Okay, or 3 minutes. Now all the actinoids have electronic configuration of 7s2. So in case of the previous one, we have 6s2 for the lanthanoids, but the configuration for F and D changes. So there were 2 exceptions, if you remember. Okay, there are 2 exceptions, 2 to 3 exceptions, right? Third one was not exception. Of course, the F, all of the F orbital was filled for the lutetium, so the next electron goes to the D orbital. Similarly, there was a case of half filled, so it was say for 4f1 and 5d5. Okay, sorry, for 4f7 and 5d1, right? So that was the configuration. Okay, now all the actinoids have electronic configuration of 7s2. We have said this, and a varying number of electrons in the 5f and 6d. So this will vary. Yes. Okay, so this will vary accordingly. So we will see at the electronic configuration how does this vary. And the reason is, of course, electron repulsion and electron nuclear pull. So that is an outcome, or you can say a result of it.
You can just not rationalize it on simple basis, right? So you need some instrument to measure it. So you have no other options but to learn them, right? You cannot rationalize them at all. The 5f orbital are filled at element 103. Okay. Variation in the electronic configuration are due to stabilities of F0, F14 and F7. Okay, F7 and F14 occupancy of the 5f. So the variation in the electronic configuration can come to these three reasons or other reasons also. You will see that although we have no F7 or F14, but still there is an anomaly. Now, the configuration of americium and cerium is 5f7 and 7s2. Okay, and for this is 5f7 and 61, right? You can see here that since it is resulting in a half-filled f orbital, so it is the next electron is going to 60. Okay. Next is the 5f orbital resembles the 4f orbital, but are not as deeply buried, which enables them to engage in more bonding. Okay. Deeply buried means they are not penetrated towards the center because they have a higher energy. Of course, they have a higher energy because the penetrating effect decreases as we increase the quantum number. So we go from 4f to 5f. So 5f are less buried, right? And which enables them to engage in more bonding. Now, since they are less attracted to the nucleus, so they will be more susceptible to reaction. ठीक है? Okay, clear? Next चीज क्या है? ये तो चीज इंपॉर्टेंट समझ में आ गई आपको, है ना? क्या कि अपना जो 5f ऑर्बिटल है वो लेस पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 4f, जिसके कारण ये रिएक्शन में पार्ट ले सकता है क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है न्यूक्लियस की तरफ. ठीक है, ओके, क्लियर. नेक्स्ट, द जनरल ट्रेंड इन lanthanide is observable in actinoids and well, this is a gradual decrease in size of M3+. Okay, so जितने ट्रेंड्स आपने देखे एटॉमिक रेडियाई और आपका ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें यहाँ भी दिखेगी. जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे, M3+ आयन का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा across the series. This is important. We have seen the same thing from the lanthanide 3+ also, right? ये आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है टेबल, है ना. देखो आप, normal electronic configuration, here we have a change. Okay, here we have a change. We have 5f2 and 61. Nor the f orbital is half filled, nor the d orbital is half filled, but still we got this. So this cannot be explained on the half filled of 4 filled. See, the next one is also showing an anomaly. Then the latter one is also showing an anomaly. All these three are showing anomaly, and they're neither resulting in half filled nor full filled. Okay, neither f is half filled or neither d is half filled. Okay, clear? The both is and both of them are nor full filled. Clear? So this is simply an anomaly. Here also, now this is the normal case, 5f6, and this should be the case, right? Okay, here 61 is first filled, 62 is here also first filled, but according to the above principle, f orbital should have failed first. How? If you just calculate the n plus l value for 6d and 5f, so for 6d it would be 0, 1, 2. Okay, 0, 1, 2. For d, the value of l is 2 and n value is 6. So 6 plus 1, 7. So 7 is n plus value for 6d, and for 5f also it is 7, right? So n plus value for both of them are same, but the value of principal quantum number is now considered, and 6d has a what? 6d has a lower, sorry, 5f has the lower principal quantum number, so it should have been filled first. But this is not the case for actinium and thorium, and similarly for proactinium, nor for uranium, and nor for neptunium. Yeah, this case is for plutonium, americium, cerium, then berkelium, californium. So they have the normal configuration. Okay, so the anomaly is for these 1, 2, 3, 4, 5. Top 5. Okay, top 5 actinides will show anomaly. For lawrencium, we know that since it becomes fully filled, therefore
this goes here. Yeah, this is also an anomaly, but this couldn't be explained because if we just put this one electron here, then that would result in fulfilled f orbital for nebelium. Clear? Okay. Yeah, and why it is so? Okay, so this is very simple because f orbital are filled first, so this is the obvious case, right? This is the obvious case. So only these fives are the what? These five are the anomalies, and which cannot be explained on the basis of your say half filled or full filled configuration concept. Clear? नेक्स्ट चीज क्या है, देखो यहाँ पे एक्टिनियम किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना. एक्टिनियम किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है. इनका भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 ही होता है. ठीक है, इन सबका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 ही होता है. ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, है ना. अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोर्स पॉसिबल है, देख सकते हो आप. थोरियम कैन गो टू +3 +4. फिर प्रो एज सिमिलर टू ट्रांजिशन एलिमेंट. यहाँ पे एक और चीज वेरी विजिबल है कि स्टार्टिंग वाले में वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और लास्ट वाले में वेरिएबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम है. इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर है क्योंकि इनिशियली क्या है, नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन से कम थे और लास्ट में क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन गया तो इनको रिमूव करना मुश्किल हो गया, इसलिए बीच वाले में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा देखे जाते हैं, है ना. देख सकते हैं आप. It can go to from +3 to +7 and nor of them are having a +2 oxidation state. Okay, clear? So we will only get an idea about +3 and +4. तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें अगर +3 की तो 5f0, 5f1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This is the normal electronic configuration, right? Similarly, अगर M4 की प्लस की बात करें इस वाले में तो 5f में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं. यहां से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so this is the electronic configuration. Okay, so this is very important that you remember the electronic configuration of the lanthanoids and actinoids because questions are often asked from here. Okay. And here, one more important thing that should remember that +3 oxidation state again is the common oxidation state. Got it? Now, next. यहाँ पे as similar to lanthanoid contraction, इसमें भी क्या होता है, actinoid contraction होता है और actinoid contraction का extent ज्यादा होगा क्योंकि 5f ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें कौन सा ऑर्बिटल फील्ड होता है, 5f ऑर्बिटल. और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो ऑर्बिटल है वो और डिफ्यूज हो जाते हैं. ये सारे ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल जो है कम डिफ्यूज होगा, फिर 2s ज्यादा होगा उससे, फिर 3s, 4s, 5s, ऐसे ऐसे डिफ्यूजन बढ़ते जाएगा. इसी तरीके से f ऑर्बिटल के लिए जो 4f ऑर्बिटल रहता है वो कम डिफ्यूज होता है, 5f और डिफ्यूज हो जाता है. डिफ्यूज मतलब आउट ऑफ शेप चला जाता है. ठीक है, आउट ऑफ शेप क्यों जाएगा, क्योंकि अपना न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स को लग नहीं रहा है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो. हाँ, ये प्रॉपर क्या बोला एनालॉजी तो नहीं है, पर अगर आप सोचो आपका जो प्लैनेट सन है, सॉरी स्टार सन है, अगर आपने उसको क्या किया, दूर कर दिया अर्थ से, तो क्या होगा, उस पर फोर्स जो लग रहा था, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा था वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना, जिसके कारण से वो आउट ऑफ ऑर्बिट रिवॉल्व करने लगेगा, फिर रिवॉल्व ही नहीं करेगा एट ए टाइम, आफ्टर ए टाइम. तो वो क्या हो रहा है, डिसकॉन्फिगर्ड हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये न्यूक्लियस ही इसको क्या कर रहा था, होल्ड करके रखता है. जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर चलते आते हैं, ये मोर एंड मोर डिफ्यूज या फिर फैलते जाता है. Now the contraction is however greater from the element to series resulting from poor shielding by 5f electron. So they show a greater what? They show a greater poor shielding effect. Okay, they show a poorer shielding effect. Clear? This thing is clear? Okay. So we can say that actinoids also show actinide contraction at similar to the lanthanoid contraction, and the extent of actinoid contraction is even greater than the lanthanoid. There is a greater range of oxidation state. Again, we have seen it in the lanthanoid that we can go up to +4 only. ठीक है, वहां +4 तक गया था, यहाँ पर +7 तक चले गए. ठीक है, तो ये ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. और कारण क्या है इसका,
5f67s आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते आ रहे हैं तो ये जो एनर्जी का जो क्या बोलते हैं अपन, जो डिफरेंस था वो पहले तो बढ़ता है पर धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि हम ज्यादा न्यूक्लियस से दूर चले आते हैं। ठीक है, इसलिए जो 5f6d और 7s है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी के हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हो तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कर पाता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। वाई डज एक्टिनॉइड शो अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज द फैक्ट, क्योंकि 5f60 और 7s ऑलमोस्ट सेम कंपेरेबल एनर्जी के होते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज frequently element exhibit higher oxidation state। okay? पहले हाफ में आपने देखा था, अभी तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसमें क्या हो रहा है, ये जो अपना जो पहला हाफ है वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहा है एज कम्पेयर टू लोअर हाफ, है ना? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं पीरियड में तो क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होल्ड हो रहे हैं न्यूक्लियस से, तो एज ए रिजल्ट ये शो नहीं कर पाते हैं ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू द अपर हाफ, है ना? So this thing we have said. Now in the first half we have said, I have said frequently element exhibit higher oxidation. The maximum oxidation state start from +4 in thorium to +5 and +6 and +7 in uranium and neptunium. You can see that how much variable oxidation state is seen. ठीक है? Okay. So these three show +5, +6 and +7 oxidation state also. But it decreases in succeeding element. Okay, so we get to a maximum of +7 और जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़ते आते हैं पीरियड में, वैसे वैसे क्या होता है, ये फिर घटते जाता है ना, +7 से +3 +4, ठीक है, +7 से +5 +4 +3 और लास्ट में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बच जाता है हायर एटॉमिक नंबर वाले के। Actinoid resembles lanthanoids in having more compounds in +3 oxidation state। ये मैंने बता रखा है। Yeah, similar to lanthanoid, they have +3 as the general oxidation state, right? Rather than +4. However, +3 +4 ion tend to hydrolyze। ये दोनों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब अगर आप इनको वाटर साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या होंगे, वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर इनका कोई अपने सॉल्ट लिया है तो वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे। The distribution of oxidation state is uneven and different for the former and latter elements। क्या बोला यहाँ पे, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है एंड डिफरेंट फॉर द फॉर्मर एंड लेटर एलिमेंट। मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट था, वो वही चीज दोबारा से मेंशन है, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स के लिए क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो अनइवन था। So it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation states, right? Now similar to lanthanoid, ये सिल्वरी अपीयरेंस होती है इनकी, है ना, सिल्वियर अपीयरेंस होती है, but display a variety of structure due to irregularities in metallic radii। lanthanide में देखा था आपने, नॉर्मल अपना क्या हो रहा था, साइज घटते जा रहा था, एक जगह 199 आया था बस, है ना, हाइक आई थी, और नॉर्मली वो डिक्रीज करते जा रहा था। पर क्योंकि में क्या होता है, इरेगुलरिटी आती है मेटालिक रेडियाई में, इसलिए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, स्पेशली द फाइनली डिवाइड वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप, ये चीज आपने पढ़ी होगी कि पैलेडियम और प्लेटिनम जो होता है, आप उसको रिडक्शन में क्या करते हो, फाइनली डिवाइड या फिर फाइन क्रिस्टल्स लेते हो, है ना। इसका कारण क्या है कि क्योंकि इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण रिएक्टेंट का जो एक्सपोजर है रिएजेंट के साथ वो भी बढ़ जाता है ना। क्लियर है? ओके, इसके इसमें तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट का एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं रिएक्शन के लिए ना। तो इसीलिए अगर आपने फाइनली डिवाइडेड लिया है, वही सेम चीज को अगर आप एज ए बल्क लो और नेक्स्ट एज ए क्रिस्टल फॉर्म में ले लो जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया, राइट? क्लियर है? नाउ अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो आप इनको अगर बॉइलिंग वाटर से ट्रीट करोगे तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के मिक्सचर को देंगे,
और नॉन मेटल साथ मोस्टली कंबाइन कर जाते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे? बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स और ऑक्साइड देते हैं, और नॉन मेटल के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पर रिएक्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अटैक ऑल नाइट्रिक एसिड slightly affect due to protective oxide layer, राइट? नाइट्रिक एसिड साथ अगर रिएक्शन होता है तो वो हल्का सा इफेक्ट कर पाता है, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले सपोज उन्होंने रिएक्शन किया जिसके कारण प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है और वो फर्दर जो है एक्टिनॉइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो पूरे तरीके से रिएक्ट कर जाता है, और एल्कली के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अगर समराइज करें इसकी रिएक्टिविटी को तो 4 पॉइंट्स यहाँ पर है ना। 4 पॉइंट्स कौन कौन से है? सबसे पहला क्या है? ये बॉइलिंग वाटर साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करके बॉइलिंग वाटर साथ रिएक्ट करता है, और क्या देता है हमें? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स देता है, एक्टिनाइड्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि ये नॉन मेटल साथ रिएक्ट करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे। तीसरी चीज क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, पर नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ये कुछ रिएक्ट करता है फिर क्योंकि एक प्रोटेक्टिव सरफेस लेयर या फिर ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, इसलिए फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता, और एल्कली के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इनकी रिएक्टिविटी को लेकर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लैंथेनाइड के कंपैरिजन में, है ना। वेरिएशन इन मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी roughly parallels lanthanide but lower values. 5f orbital penetrate less into inner core, so 5f orbital more shielded from nuclear charge, है ना। क्यों, क्या बात है यहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ? ये यही चीज दोबारा मेंशन्ड है जैसा मैंने बताया था एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस शिल्डेड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज के, और इस कारण से ये बॉन्डिंग के लिए ज्यादा ईगर होते हैं। दैट इज द रीजन दैट एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द lanthanide, right? Actinoids are more reactive than the lanthanoids. Lanthanoids and actinoids contract affect size, तो ये दोनों जो attractions है इनके साइज को affect करते हैं, ठीक है, और सिमिलरली इनकी प्रॉपर्टीज को भी affect करते हैं। But lanthanoid contraction is more important as chemistry of elements succeeding lanthanoid is less known. तो जब तक अभी जब क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज्यादातर किससे आता है? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से आते हैं। कारण क्या है कि एक्टिनॉइड्स के बारे में जो स्टडी वगैरह हो रही सकी, क्योंकि जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो रिएक्टिविटीज में चेंज आ रहे हैं वो उनके बारे में ज्यादा अपन ने पढ़ा नहीं है, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए डाले जाते हैं कि वो आपके करेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, है ना। इसी कारण से क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। अब चलो समराइज करते हैं थोड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में होता है, पहली चीज, और वो ऑक्यूपाई मिडिल सेक्शन को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हम लेफ्ट से एस से पी ब्लॉक जाते हैं तो ये इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रांजिशन काम करता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 पैनल नीचे में रहते हैं, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कहते हैं। 4f और 5f सक्सेसफुली फील्ड होता है, जबकि डी वाले में 3d 4d 5d और 6d सक्सेसफुली फील्ड होता है ना। क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? Zn, Hg, Cd और Cn, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ना ही अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में और ना ही नॉर्मल स्टेट में इनका डी ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फील्ड होता है। क्लियर है? नाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सिबिट मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वो लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, मेबल होता है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है? इनके इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर इनके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के चलते। तो दे शो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। So these all are the what? These all are the metallic character. Here. Now अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मेन ग्रुप एलिमेंट में क्या होता था? ये स्टिपली इंक्रीज होता, मतलब फास्टली इंक्रीज होते थे, पर इस वाले केस में क्या होता है? ये स्टिपली इंक्रीज नहीं होते और वेरी तो बहुत ज्यादा करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के कारण, डी वाले केस में। ठीक है, क्लियर है? और इसी कारण से क्या होता है इनमें, अब क्योंकि स्टिपली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है
कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो ऑलमोस्ट सेम है ना। तो क्या होता है कि आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, catalytic property, and tendency to form colored interstitial compound and complexes। ये हमने पढ़ रखा है कैसे interstitial compound बनता है। ओके, और अगर बात करूं फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस वन फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग द काइंड ऑफ यू कैन से व्हाट, कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि 3D सीरीज के केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आता, वो ऑर्बिटल के कारण नहीं आता, जो भी होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। तो इसीलिए जो वैल्यू आती है रूट अंडर n इंटू n प्लस वन करके, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के काउंट से, वो ऑलमोस्ट क्या करती है, एक गुड अप्रोक्सीमेशन शो करती है एक्चुअल वैल्यू के साथ। ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का केस नीचे वाले सीरीज के ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सीरीज ऑफ transition metal oxides are formed from reaction of metal with oxide and dissolves in acid to form oxalometallic acid। ये हमने पढ़ रखा है। The lanthanoid and actinide constitute the F block, है ना, ये बात हमने देखी है। And the lanthanoid show a gradual decrease in atomic size and ionic size, we have seen this, and this is to lanthanoid contraction along the series। clear है ना। Next is lanthanoids are soft white metals, and this is the same for actinoids also, and they react with water to give +3 ions, while actinoids have complex chemistry due to their ability to exist in different oxidation state, and many are radioactive। Okay, so the same thing is mentioned that the upper half of the actinoids क्या कह रहे थे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, इसलिए इनको स्टडी करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि ये रेडियो एक्टिव भी है इसलिए ये आसानी से स्टडी नहीं की जा सकते। The D and F block elements and their compounds have various applications: steels, catalyst, complex and organic synthesis, and more. The application part of this. So with this we have covered all the D and F block. The next class we will move to coordination compound. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि D ब्लॉक के एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को आप दिमाग में रखो, क्योंकि थ्रू आउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप इनका ही यूज करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट अ वेरी गुड ग्रैस्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहली चीज, ताकि आपको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आए, और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आए इसके लिए आप उसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को भी स्टडी कर लोगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रीजन है, हो सकता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन ना हो, पर जब हम कहाँ जाएं, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएं, तो वहां पे अपन का डी ब्लॉक की क्या कहते हैं, डी सबशेल की स्प्लिटिंग होगी, और उस स्प्लिटिंग में आप देखोगे कि कैसे सारे के सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। एक हद तक एक्सप्लेन हो भी जाएंगे, हाँ कुछ कुछ सारे एक्सप्लेन तो नहीं हो सकते, पर मैक्सिमम जो है वो एक्सप्लेन वहां पे हो जाएंगे। क्लियर है? Okay, so with this I end my lecture. Okay, thank you.